ठीक है। Good morning, everyone. A very warm welcome to today's seminar on Hope Creates Opportunity. It is a moment of great honor and pride for all of us at Supertech India Computer Education to welcome a very distinguished personality, Mr. Subhash Chandra Gupta ji, retired district and session judge. Mr. Gupta has had a long and inspiring journey in the Indian judiciary. He began his academic life by completing his Bachelor of Science from the esteemed Government Gandhi Memorial Science College, Jammu, and later pursued his passion for law by earning his LLB professional 3-year course from the University of Jammu. After successfully clearing the Judicial Services examination, he joined the judiciary and served with dedication for several decades. Over the course of his career, he held prestigious posts in various regions of Jammu and Kashmir, including Bani, Basoli, Srinagar, Samba, Jammu and Rajouri. His legal acumen, sense of justice and commitment to public service earned him immense respect in every district he served. Even after retirement, his presence continues to inspire young minds and professionals across different fields. Sir's journey teaches us that honesty, discipline and consistent efforts are the true key to success, whether in the field of law or information technology. We are deeply grateful to have him with us today to motivate and bless our students. Along with our esteemed chief guest, we are also proud to have among us a truly inspiring figure and mentor, our very own Mr. Puneet Mahajan sir, Chairman of Supertech India Computer Education and also Jammu and Kashmir Health and Medical Cell Coordinator. Now, I respectfully request Shri Subhash Chandra Gupta ji, former District and Session Judge and Honorable Member of J&K Service Commission, to kindly come forward and share his words of wisdom with us. Let's welcome him with a big round of applause. So I'm feeling delighted here to be among you. J education जो जम्मू यूनिवर्सिटी में जो एक पढ़ाई वो भी जरूरी है, जो बेसिक एजुकेशन है, इंग्लिश पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, दूसरा भी है, लेकिन जो आज का दौर आ रहा है, जो आपका सही मायने में जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये जब तक स्किल्ड नहीं होगा तो तब तक ये चाहे किसी भी, ठीक है, कितने लोग टीचर बनेंगे, बाकी सारे प्रोफेशनल हैं। आप देखो एक टाइम पे मैं स्टोन एज से सीधा आ जाता हूँ कंप्यूटर, कैसे डेवलप हुई हिस्ट्री, कैसे हमारा पहले ट्राइब सेटअप था, कैसे ये आस्ता आस्ता, मैं शॉर्ट में बात करूंगा ये वाले, तो कहाँ पहुंचे हम ट्राइब से लेके, पहले ट्राइब का भी पहले क्या था, पहले बिखरे हुए थे, बाद में हमने कम्युनिटी सिस्टम डेवलप हुआ, कम्युनिटी से मॉडर्नाइजेशन हुआ, जैसे हड़प्पा और आप देखो मोहनजोदड़ो का, और बाकी और भी सिविलाइजेशन है वर्ल्ड के जो आपको मिलेगी, चाइनीज सिविलाइजेशन पुरानी है और रोमन सिविलाइजेशन वो भी पुरानी है। तो हमें भी एक कम्यून सिस्टम था, जो भी पैदावार होती थी, मोस्टली जो दुनिया थी जहाँ कहाँ कहीं भी एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, अग्रेरियन सोसाइटी थी, जो सारा हमारा पैदावार जो खेतों में होती थी उसी पे हम निर्भर थे। तो फिर आस्ता आस्ता जी जो, और फिर उसके बाद कपड़ा आया, तो उसके खड्डियाँ जो हैंडलूम है अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी भी जो कश्मीर का अगर आपने साल लेना है खाना आमा का तो 1.5-2 लाख का है, और भी अभी भी वो आर्ट्स जो है राजस्थान की जो है, हमारे जम्मू कश्मीर की जो हमारे लोग जो आर्ट में डील करते हैं, चाहे या पेंटिंग है, चाहे आपके जो वीविंग सिस्टम है, कपड़ा है, और महात्मा गांधी ने उस वक्त क्यों था, क्योंकि उस वक्त क्या होता, जहां जो पैदावार होती थी वो सारा प्रोडक्ट लेके चला जाता था इंग्लैंड में, यूरोपियन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में जो माल बिकता था बड़े हाई रेंज पे,
जो इंडियन सोसाइटी अफोर्ड नहीं करती। उन्होंने कहा क्या अपना, तो फिर उन्होंने कहा कि आंदोलन चला कि विदेशी नहीं लगाएंगे, अपना एक सेल्फ सोसाइटी कायम की। तो है क्या था, इसके पीछे क्या था, मैं थोड़ा एक्सपेंड करूँ। मैं क्या था, स्वास्थ्य। चाहे आज जो अग्रेरियन सोसाइटी जो कोई भी है, कंप्यूटर के बगैर, आईटी के बगैर कोई सिस्टम नहीं है। देखिए हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स इक्वल टू चाइना है, बराबर है चाइना के बराबर। क्या हम पीछे क्यों हैं? जो अभी एजुकेशनल जो चेंजेस आई, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी चेंज आई 2020, उसमें क्या हुआ? उसमें चेंज क्यों लाने की जरूरत पड़ी? ड्रॉप आउट बच्चे। एक तो मैं नर्सरी वाला भी कहूंगा कि बच्चों को स्कूल भेजना, फिर जो आंगनबाड़ी है, ये जो आपके किड्स हैं, इनका भी यहाँ पे ये सिर्फ उसकी पहले ग्रूमिंग हो, अंडरस्टैंड करेगा बच्चा वहीं से ही कि मैं आगे मैंने कैसे पढ़ना है, क्या है क्या नहीं। प्ले स्कूल आए तो एक उसके साथ क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन, जो एक टाइम में बराबर में करूंगा, मैं उसकी बात भी की है। लेवल होता क्या था, ये सारे जो बच्चे स्कूल ही नहीं गए, और खासकर अनऑर्गेनाइज्ड जो हमारे लोग थे, जो लेबर स्टाफ थी, जो माइग्रेंट लेबर थे, बाहर से आते थे बच्चे, और दूसरे भी होता क्या था, मैंने लेबर डे में बात की कि माँ अगर जाती है किसी डे में घर में काम करते तो बच्ची को स्कूल नहीं जाने देते, तो तू घर का काम कर जा माँ के साथ बात। एक वो भी तो वो एक फिर लॉ बना, आपको पता होगा कि लेबर लॉ में 14 साल तक बच्चा कोई काम नहीं, और 14 और 18 के बीच में हैजर्ड्स होते हैं, फैक्ट्रियों में काम, जैसे पटाखा फैक्ट्री है, दूसरी उसमें काम नहीं करते, और थोड़ा तो लेकिन उन्होंने एक थोड़ा कर दिया कि 14 और 18, और क्यों किया कि आपको एजुकेशन मैं यूं कह रहा हूं, ठीक है, कुछ लोग जो एक फ्यूडल बैकग्राउंड से अच्छा पैसा है वो यूनिवर्सिटी में एंजॉय है, लेकिन जो आज आ रहा है, मैंने यहाँ पे बात की पिछले दिनों, एक अरेस्ट किया मैंने, देखो ये वाइट कॉलर लोग हैं, ये गलत फहमी में मत रहे, जो वाइट कॉलर कल्चर है ना, जिसको वाइट कॉलर कल्चर कहा था, और वाइट कॉलर क्राइम भी हो रहे हैं, वो आपने डिटेक्ट करने का था, जिन कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो जाएगा, और साइबर क्राइम क्यों हो रहा है, और उन्होंने जो आप देखिए साइबर क्राइम क्या है, इसमें क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अच्छा है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए बात है। तो मैं आपको हम ये क्यों इकॉनमी चाइना की आगे है, आखिर तो हम अपने आप को कंपेयर करेंगे, रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स सेम है, और हमारी सोसाइटी और उनकी सोसाइटी एक जैसी, और जितना उन्होंने वो देखा कि सिविलाइजेशन बराबर में थी, लेकिन आज कहाँ है चाइना, उनकी इकॉनमी क्यों है, उनको कंप्यूटर जो सिस्टम है, आईटी एजुकेशन दी, और आईटी एजुकेशन किसमें दी, हर फील्ड में, और पर्टिकुलर अग्रेरियन, हॉर्टिकल्चर है आपका, ये है ये अपना कैटल रेलिंग है, जो आपका पोल्ट्री है आपका, ये जो आप कह सकते हो, हर किस्म का उन्होंने, ये तो एक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने समझा एक किस्म का, जैसे अभी हमारे बात हो रही है कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री या इसको कंसिडर करो, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर किया, आप देखो बात है उनका एक, हमारे यहाँ पे डिपेंडेंसी अभी भी है मॉनसून इरिगेशन का सिस्टम, एक टाइम पे पड़ा रहा है, एक टाइम पे अभी एक बात हुई अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, अभी भी हो रहा है, हम सभी लेबर्स को इकट्ठे करेंगे ताकि इरिगेशन सिस्टम हमारा है, और डैम वगैरह एनएचपीसी वगैरह बनाता है। तो हुआ क्या है कि उनका जो चाइना का है कंट्रोल है, वो इकॉनमी भी आपको पता है कि कैसा पैसा, सबसे बड़ी बात है पैसा, पैसा जो है ये पूरे जो सिस्टम को चलाता है, और पैसा कैसे आएगा, पैसा काम करने से, और काम देखिए आप, काम किस किस्म का होना चाहिए, काम हर में आप अगर यूट्यूब खोलोगे तो आपको नए
नए तरीके होंगे कि ये जो बिल्डिंग थी इसका भी मटेरियल है, उन्होंने पूरा ही मकान ही आपको एक बना के दे देंगे जो है। और भी सिस्टम है, इतना हर किस्म की वैरायटी आपको मिल जाएगी हर चीज। ये कहां से आया? चाइना बर्फोर के पास। तो टेक्नोलॉजी कहां से ली? यूएस से, यूनाइटेड यूरोपियन कंट्रीज है, लेकिन उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी अपने पास थी। हमारे लोग और ज्यादा उन्होंने डिपेंडेंसी अपनी दिखाई टेक्निकल टेक्नोलॉजी पे। आज उनकी बिल्डिंग्स देखो, उनकी टेक्नोलॉजी देखो, उनके वो देखो जो ट्रेन चलती है, हम तो आज बुलेट ट्रेन का ख्वाब देख रहे हैं, तो वहां पे बुलेट ट्रेन चलती है जापान में, कैसे जापान और चाइना को आप देखो, सिर्फ आईटी डेवलपमेंट से हुआ है। ये वाला जो एजुकेशन आप ले रहे हो, मैं ये सारी बातें इसलिए करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा जी इसको पैसे मत लो, और चाहे जितनी मर्जी पढ़ाई करो। जैसे कोई मैं जब तक कंप्यूटर एक्सपर्ट आईटी एक्सपर्ट नहीं होगा कोई, आप ये एडवोकेट की बात करें, आप एक बिजनेसमैन दुकानदारी की बात करें, अगर किसी ने बिजनेस ही करना हो, अगर कोई जो घर में जो आप कहते हो ना होम मेकर, मैं बोलता हूँ, मैं हाउस वाइफ होम कहते हैं ना, मेरी मामा हाउस वाइफ है, होम मेकर। और इसकी बात करूंगा कि जो एम्पावरमेंट की बात, और चिल्ड्रन जो है ये आने वाले और जो हमारी मनोरल सोसाइटी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेशल राइट करता है विमेन के लिए, और जितना वो काम करती है, एक आपकी जो घर का भी पूरा करेगी, और जो वर्किंग लेडी है वो क्या करेगी, वहां पे भी काम करती है। ये इसलिए उनको होम मेकर है, तो उनको भी सीखना है कि मैंने अपना घर कैसे चलाना, तो वहां पे भी आपकी शॉपिंग जो है ना, आजकल की शॉपिंग सारा है, Amazon दूसरे हैं जो आप कर सकते हो, और उसी के साथ आपकी जो इन्वॉल्वमेंट होगी, चाहे जहाँ पे ट्वेल्थ होगा आप एजुकेशन लेंगे, ऐसा है जो सारा जो ई गवर्नेंस का टाइम आ गया, जो आपको पता है, और पब्लिक सर्विस जो गारंटी एक्ट है, कानून है, उसके मुताबिक पोर्टल है, आपने अप्लाई करना है, कोई रेवेन्यू कार्ड, कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी का भी कोई भी चीज लेनी है, पोर्टल पर अप्लाई करोगे और पर्टिकुलर टाइम को आपको काम मिल जाएगा। तो ये कौन देख रहा है ई गवर्नेंस, जान जो आपका दूसरा है, ये कौन देखेगा? ये आप लोग देखेंगे। आप देखो, आप एक टाइम था जो रिक्रूटमेंट होती थी कहीं भी किसी भी सर्विस में, तो उसमें देखते थे कि वही ऐसे प्रोग्रेसिव को आपको मैं होता है, अब क्या है, एक कंप्यूटर आता है, क्योंकि पेपरलेस है, पेपरलेस जो डिपार्टमेंट है, पेपरलेस। अभी आपको कोई कॉपी, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन, किसी किस्म का कोई पेपर पे नहीं देगा, वो यूर फाइंड जो भी आपको किसी अप्लाई करना है कहीं, आपका जो आप देखिए अपना ही फॉर्म भर देते हैं, कोई रिक्रूटमेंट के लिए जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं कंपटीशन में ही जाते हो, तो वो कैसे होता है, सारा वहाँ पे पूरा यही सिस्टम है, स्कैन करना है, डिजिटल सिग्नेचर्स है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स है। और आज जो मैं आगे और जाऊँगा, जो लास्ट में थोड़ा सा रहा हूँ, और जो अब 3 जो क्रिमिनल लॉज नए आए हैं, जिनको ये गवर्नमेंट बड़े तरीके से और कैसे लाई, और कब था हमारा 150 साल वाला हम फॉलो करते थे, जो पिछला था इंडियन पीनल कोड का, वो माइकलो के टाइम का था, जो इंडियन एविडेंस था, जो साक्ष्य है, अभी जो 3 आया, तो उनमें क्या आया नहीं थी, उनमें भी ये ऑडियो वीडियो रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन होगी, तफ्तीश हुई, पहले FIR लगाते थे, कोई अभी एक पीछे ही आया EFIR, कि आपने अपनी FIR भेजनी है भाई ई-मोड से, तो ये भी एक चीज है। और उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका था उसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी होगी, तो फिर कौन आएगा, वो आप लोग, आपको कोई एडवोकेट है, मैं आपको यही कहता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, हिसाब किताब कुछ अभी
इंगेज कर रही है जो आपके जो एडवोकेट, अभी कोई जो नया एडवोकेट आएगा वो पूरी कंप्यूटर सिस्टम से जानकार है, खुद ड्राफ्ट करता है। और अगर आपने देखिए, आप अगर ये शॉपिंग करेंगे या कोई किसी भी, आप खुद ही पूरा आता है जे एक तो। और इसमें और मैं आगे आ जाता हूं, जो मेन चीज जो है, देखिए आप जहां से सर्टिफिकेट ले जाओगे, सर्टिफिकेट ले जाओगे, मार्केट में आपको कंपटीशन फेस करना है, क्योंकि एक पोस्ट के लिए 100 बंदा हो। तो आज जो ये वाला काम है, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता। और आजकल ये सारे जो है, जो भी एग्जाम होता है, ऑनलाइन भी होगा, दूसरा भी होगा, लेकिन इसकी पूरी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है अंदर CCTV सर्वेलेंस। तो कोई आप कहोगे दूसरा बंदा बैठा के, जब पैसा है वैसी बात नहीं होने का। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एक्सेल करोगे, मतलब आज माल किसका बिक रहा है, जहां कोई भी बंदा जो है वो उसका है जो अलग करता है हर किस्म का। आपको आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, तो आप इस पे चले जाइए, जो फूड है, आज तो घर में खाना ही कोई नहीं खाता, बाहर से आता है, लेकिन उसमें भी आप चॉइस बनाते हो यार कहाँ से लेना, शॉपिंग करते हो यार कौन सा ब्रांड लेना है बच्चे को। तो वो भी एक कंपनी है। और इसमें जो ये सारी बातें, ये आपको पूरा एक भूत और एक छोटा सा ग्लोबल विलेज बन चुका है। और आज जो बार्स हो रही है, वो वाली बार नहीं है कि टैंक लेके आएंगे, घोड़े वाली बार थी एक टाइम पे, वो वाली बार थी, हाथी वाली बार थी एक टाइम पे। आओ आपने देखा, एक्सपीरियंस करिए आपने जम्मू में। हमने कहा, एक हम डिस्कशन करते रहते हैं, मेरा यूट्यूब कानूनी चर्चा एक खास एक चैनल भी है, उस पर हम बात करते हैं। तो मैंने कहा कि अभी जम्मू वालों को एडवाइस दी थी, जब ये चल रहा है पाकिस्तान का और इंडिया, हमने कहा कि अभी जो भी नई बिल्डिंग बनाए वो क्या करे, वो अंडरग्राउंड अपना एक बेसमेंट की बहुत जरूरी है, क्योंकि हमला ऊपर से होना। और आप जैसे लोग IT एक्सपर्ट वहां बैठे, ड्रोन चले, जो हमला हुआ 9 हमने स्ट्राइक की लोकेशन पे, प्रिसीजन अटैक हमारा बिल्कुल। पहले उनकी ड्रोन ने इमेजेस दी, आपको पता है जो पहलगाम के बाद पाकिस्तान पे हमने 9 जगहों पे अटैक किया था, जहां टेरर जो उनके वहां पे टेरर जो टेररिस्ट फंक्शन करते लोकेशन थी, और पूरा एग्जैक्ट, क्योंकि आज वो वाला मामला नहीं। इधर उधर अगर कोई भी जाएगा, वो बिल्कुल गाइडेड मिसाइल होते हैं और पूरे स्ट्राइक की। और अगर इधर उधर होता तो शोर मचता, यूएन में बात होती, पाकिस्तान शोर मचाता, तो उसको बिल्कुल। और हमने कहा कि भाई देखिए, हमने कोई बिजनेस जो उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे कोई अटैक नहीं किया, ना ही हमने उनके किसी सिविलियन पॉपुलेशन पे किया। हमने वही 9 जो अड्डे जहां पे आजर मसूद जो एक वर्ल्ड टेररिस्ट, और कल ही TRF को डिक्लेयर किया, जो पहलगाम में जिन्होंने जो वारदात की थी, जो टूरिस्ट मारे हैं 28 लोग, और उनको वो सारी बातें, तो वो TRF को कल डिक्लेयर कर दिया US ने इंटरनेशनल। तो सारा कैसे हो रहा, जे आप लोग वहां पे, वो वाली बात ही नहीं है अभी, जहां पे चले वहीं से ड्रोन आएगा, उसी को जो हमारे 400 जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम था, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था, जो हमारे जहाँ से रशिया के साथ कोलैबोरेशन से हमने बनाया था, उसको क्या हुआ, उसने नीचे गिरने नहीं दिया, ऊपर से ही किया। हाँ, किसी का मलबा गिरा होगा, उससे कोई नुकसान हुआ होगा। तो एक मैं बैठा था तो फोन आया दिल्ली से, सर आप दिल्ली आ जाओ, जहाँ पे आपके एयरपोर्ट पे अटैक हुआ है पास। तो मैंने कहा यार आप थोड़ा और देखो, तो चल रहा था टीवी, मैं क्या आपके दिल्ली में भी अटैक हुआ है। तो वो वाली बात थी, हम छोटे थे जब, तो हमें एडवाइस देते थे 1965 में, आप पहाड़ों में चले जाओ, क्योंकि जब बॉर्डर एरिया था
जहाँ 1971 में दूर चले जाओ, अब पहाड़ों वाला नहीं, कहीं छुप नहीं सकते आप, क्योंकि हम और आपको जो याद है। और थोड़ा सा इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड जो इस पर सिनेरियो चल रहा है, जो गाजा पट्टी और जो दूसरा जो वहाँ पे फिलिस्तीन के जो हमास ग्रुप है वहाँ पे और इजराइल के चल रही है, बात चल रही है, वहाँ पे देखो क्या उन्होंने उनके दिनों टनल्स बनाए हमास, और कितने हैं कई किलोमीटर से उन्होंने पहले ही तैयार कर ली, क्योंकि उनका आयरन ड्रोन था, किनका, इजराइल का, उन पे कुछ नहीं है, कोई स्मॉल रेंज है ना, वो जो उनका मिसाइल आएगा वो अंदर पहुंचेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हम बराबर में, तो लड़ाई क्या है, जिस टेक्नोलॉजी, दोबारा वापस आ रहा हूँ आपके साथ ही जोड़ रहा हूँ, सारी बातें टेक्नोलॉजी की बात हो, ये सारी टेक्नोलॉजी की है, इंफॉर्मेशन की, RT एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, कुछ तो क्या नहीं दे सकता, आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो गवर्नमेंट से, फिर क्या है अभी देखूंगा, तो ये भी RT एक्ट आपको नॉलेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, ये सारा काम आप लोगों ने। एक और मैं बात बता, जो आप लोग हो ना, तो जो कंप्यूटर वाले होंगे, चाहे वो जो आप कोई भी लेवल है, कंप्यूटर साइंटिस्ट भी है, कंप्यूटर इंजीनियर भी है, जो कंप्यूटर एजुकेशन जो है ये बहुत बड़ी, और ये कंप्यूटर आप देखो कब से शुरू हुआ था, आज कितनी इफेक्ट है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, और वो आजकल तो सारे डिजाइनिंग हुए हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी है, ये सारा कंप्यूटर है, ये सारी आपने जो कैलकुलेशन है, हिसाब किताब है, उसी ने अपना बिजनेस भी करना पड़ेगा, किसी को चिट्ठी भी लगनी पड़ेगी, वो टाइपराइटर बनाने वाले नहीं, आपको ही नहीं, लेकिन मैं तभी मैं कर रहा हूँ कि आप और जितनी प्रैक्टिस करो, आपको एक है, एक जो आइडिया है, एक होल इन वॉल है, कोई आपने सुना है, जब आपको ये कंप्यूटर एजुकेशन, ये तो एक जो था, एक वॉल, एक होल क्रिएट किया गया, ये 1982 कहाँ पे किया, अफ्रीकन ट्राइबल एरिया, तो वहां क्या करते थे, ट्राइबल वाले या स्लम्स वाले जो मेन स्ट्रीम के से अलग रहते हैं, जो डिपेंडेंट जैसा एजुकेशन है दूसरे से, वो क्या करते हैं कि अंदर एजुकेशन नहीं आना चाहिए, चाहे कोई भी, वो अलग है, सेंटिनल एक ट्राइब है, वो आपको लक्षद्वीप के एरिया आज तक उन्होंने कई लोगों को मार दिया है, वो मेन स्ट्रीम में आना नहीं, चलो इस बात को लगा, उन्होंने क्या किया, होल क्रिएट कर दिया, एक बार एक अबंडेंट सीक्रेट टू ट्राइबल पीपल, 1982 है, जी मैं बताऊंगा, ये प्रोग्राम उन्होंने आगे भी कैरी किया है, इस प्रोग्राम, ये सुगाता मित्रा, आपको याद होगा आप लोगों को कि सुगाता मित्रा, तो इन्होंने तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे अबंडेंट जगह पे रख दिया, और चिल्ड्रन जो स्लम्स एरिया में थे, अफ्रीका की बात कर रहा हूँ मैं, तो बच्चे खुद ब खुद सीख गए, असेस दे दी, ओपन कर दिए, जैसे देखिए मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा भी आप भी सीख लोगे, अपने आप ही जान से कुछ नहीं लोगे, लेकिन एक जो प्रैक्टिस है, और देखो छोटे होते होंगे आपको, जब हम हमारी एज में जब थे उस वक्त गेम ये दे देते थे, वीडियो गेम, ये ऑडियो गेम, जब दूसरी तीसरी गेम्स होती थी, तो छोटा सा वो होता था एक, लेकिन आज बच्चे कहाँ खेलते हैं साथ, तो उन्होंने एक सर्च हुई इस पे कि भैया छोड़ो इसे, अफ्रीका में ट्राइबल, वो बच्चे सीख के उनको चलाना, स्टार्ट करना, दूसरा तीसरा मोटी मोटी बातें उनको सिर्फ ऑपरेट करना, ये तो बड़ी डीप नॉलेज है, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो फिर उसके बाद यही उन्होंने दिल्ली में किया, 99 में एक बॉल क्रिएट किया, कालका कॉलोनी थी वो स्लम्स एरिया, वहां पे भी एक कंप्यूटर रख दिया, और बच्चे जो स्लम्स के थे वो खुद वहां पे पहुंच गए, तो ये क्यों कर रहे हैं, आज तो आप आ रहे हो जहां पे पैसे लेकर ले रहे हो, जब कंप्यूटर एजुकेशन हो तो जो मेन स्ट्रीम वाले तो ले रहे हैं, हमने कहां पहुंचानी है, स्लम्स पे,
आप देखिए क्या है, जैसे स्लम एरिया में जो है उनका एक ही कंसर्न है कि भाई लेबर क्लास जो है, वर्किंग क्लास का उनका एक है कि 4, 5, 10 बच्चे रखने हैं, पैदा करने हैं, और क्यों कि मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अभी देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग मैं बात कर रहा हूं, अभी देखिए क्या हो रहा है। अभी वो लेवल कर लेकिन ठीक है, लेकिन अभी उनको जरूरत पड़ रही है ये कंप्यूटर, तभी उन्होंने आइडिया दिया, क्योंकि असेस कोई नहीं है, वो मानेंगे नहीं आपकी बात अगर आप कोई प्रैक्टिकल बात समझाओगे। जो लोग एजुकेशन की बात करोगे, तभी उन्होंने कहा क्या किया, आंगनबाड़ी सिस्टम किया, ये जो किड्जी वाला सिस्टम कि बच्चे स्कूल में जाएं, और कंपल्सरी आर्टिकल 121A को इंट्रोड्यूस किया, कंपल्सरी 14 साल तक एजुकेशन। और हम तो ये कहेंगे कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस करे कि टेक्निकल नॉलेज ये है, और हो गया है जो हमारी एजुकेशन न्यू पॉलिसी आई है उससे भी ड्रॉप आउट है, और उसमें कहा गया है कि आप ज्यादा कंसंट्रेट करें किस पे, ये जो इस एजुकेशन है जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, जिसमें कंप्यूटर है, चाहे वो एग्रीकल्चर से, चाहे वो दूसरी इंडस्ट्री और बिजनेस है। और एक टाइम पे क्या था, मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहा कि एक आप एग्रीकल्चर के क्या बना देते हो, गस्टेड ऑफिसर बना देते हो। आपको एक बात होगी, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, आर्टिकल ग्रेजुएट, हम कहते हैं कि 10th और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हायर एजुकेशन डिग्री की, उनको डेवलपमेंट दी, ताकि, और उनका क्या है, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होगा या दूसरी किसी फील्ड में होगा, वो फिर एग्रीकल्चर फील्ड में काम नहीं करेगा। तो हमने क्या कहा कि वो जो 10th वाला है, 12th वाला, उसको डिप्लोमा दो, 1 साल का दो, ताकि वो मॉडर्नाइजेशन तरीके से एग्रीकल्चर और अपने गाँव में माइग्रेशन नहीं होगी। तो अब ये है, और आपका मुझे नहीं लगता, मैंने बड़ी कोशिश की अभी कि मैं कोई जो आप लोग हैं कि जो कोई बुरी नहीं, कोई आपको जाते ही कहीं ना कहीं कुछ ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आपकी हो जाएगी, लेकिन वो भी उसकी जो बच्चा कंसंट्रेट कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, और एक चीज कोई भी सिखाई जाती है उसको आप प्रैक्टिस करो। मैं खुद चलाता हूँ, मैं समझूंगा जो चल रहा है आस-पास, जैसे मैंने कहा ना ये ऑल इन ऑल, तो मैंने खुद सीखा, मुझे कुछ नहीं था, थोड़ा सा मैं पूरा अपनी एडिटिंग कर लेता हूँ, ये जो बना रहा है ये हम खुद करेंगे। तो ये कैसे हो रहा है, प्रैक्टिस, तो आप भी प्रैक्टिस करते हो, थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, और अपना आइडिया जो है ना थिंकिंग, इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस जब तक नहीं हो तब तक आप कोई काम नहीं कर। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जैसे मैंने पढ़ा कि मेरे पास अगर बातें करने के लिए तो 2-3 घंटे आपसे मैं बात कर सकता हूँ, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत जरूरत है। अभी आपकी इंट्रोडक्शन जो इन्होंने करवाई, देखिए आपको मैं बताऊँ ये क्या कारण था, क्यों करवाई, और इससे क्या फायदा हुआ, मुझे बताइए। बता सकता कोई क्या फायदा हुआ? अभी चलो मैं बात करूंगा बीच में, आप थोड़ा सा क्वेश्चन बता सकता है क्यों करवाई गई? हाँ प्लीज, इसका भी रीजन होता है। ये भी बहुत, मैंने बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ इनको कि ये भी करवाई गई, थोड़ा सा इंटरेक्शन को भी इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, अलवी आप भी बताओ, अलवी आप बताओ। सर मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे एज एन एस्पिरेंट मैं आपसे पूछूंगी, जैसे हमारे JNK में फॉर्म आउट हो गए फॉर एन एग्जांपल, उसमें क्या होता है कि 1000 पोस्ट आउट हो चुकी हैं, एंड जो कैंडिडेट्स हैं सीरियस नॉन सीरियस बोथ, उसमें वो 2 लाख तक फॉर्म पहुंच जाता है। उससे क्या होता है, मुझे ये चीज़ जाननी है कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो 2 से 3% है ऑनली। कभी कभी क्या होता है, जैसे रिक्रूटमेंट आउट होती है, फिलहाल तो होती नहीं है, सबसे मेन चीज़, अगर होती है तो उस पर कोर्ट केस, डिलेस, प्रोटेस्ट से ये सब चलता है। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं 2 से 3%, उनकी क्या एक स्ट्रैटेजी रहती है, हम जैसों से जो अनसेलेक्टेड होते हैं, हम कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को यूनिक करें सो दैट हम भी उस कैटेगरी में फॉल कर जाए 2 से 3% में, सो दैट हम भी एक एम्प्लॉय बन जाए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हमारे साथ भी वो एक टैग लग जाए
देन सर जब हम एक कंपटीशन में बैठते हैं, वहाँ पे ढेर सारे कैंडिडेट्स होते हैं, वहाँ पे एक नर्वसनेस होती है कि हमारा ये ठीक होगा नहीं होगा, हम सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे। वो 2 घंटे में इतना कुछ चल रहा होता है ना, उस चीज़ को हम कैसे कोप अप करें कि हम हाँ। और एक चीज़, गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे हमें पता भी नहीं है हमारी सिलेक्शन होनी है नहीं होनी है, कब तक होगी। 1 साल लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की बहुत बढ़िया। होती है। और ये सारी आज का जो इनका ऑर्गेनाइज करने का था ना, ये सारा उसका करेक्ट है। जी सर, ये ठीक है ना। Very good. अभी पहला क्वेश्चन का आंसर है, जैसे आपने कहा जो काफी लोगों ने अप्लाई किया है, एक और माइक दे दो, एक और वो- माइक वो भी निकाल दो, तो उसमें क्या होता है एक माइक और। कि पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट जो रखा है ना आपका, जो आपने देखा पहले वो उसको लेते हैं, स्क्रूटनी होती है बार, क्योंकि एक ये वाली बात है कि कोई बंदा रह ना जाए, क्योंकि ये तो नहीं ना पता ग्रेजुएट मिनिमम क्वालिफिकेशन। कोई मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या 12th है जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वाले करते हैं, ठीक है, यहाँ कहीं भी है, तो एक पहले क्या होता है, हम उसको थोड़ा कर देते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो आपने देखा होगा, जो आइडिया है ना, उससे रिड्यूस हो जाता है। देखो ऐसी बात नहीं, कंपटीशन बहुत गहरा है। मैं बच्चों को कहता हूं कि जैसे कि मछली की आंख में तीर मारा था, अर्जुन को कहा गया, तो मैं ये कहते कि मछली की आंख में, तो मैं बच्चों को कहता हूं कि मछली के आंख में 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट कौन से हैं? जो आप सर्कल है ना पीछे, आंसर है, और इक्वली सिचुएटेड है। जो आप देखोगे कि आंसर आप में जनरल जो बच्चे आगे जो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, जहाँ हो सकता है आप में भी, जैसे छोटे लेवल पे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जैसे आपका कोई ये जो होते हैं कंप्यूटर वाले भी होते हैं, आपके ये इसमें जो सिलेक्शन होती है सेक्रेटरीट के लिए होती है, वो किसकी, तो उनमें से एक चुनना है, तो वो कौन चुनेगा? वो जिसने एक्सेल किया, जिसको एक्सपीरियंस होगा, चाहे आपकी एजुकेशन है जो स्किल्स वाली, तो खुद ब खुद। और जो आपने बात की कॉन्फिडेंस, मैं आपको इंटरव्यू की बात करूंगा। दूसरा भी है, देखिए पहले तो ब्रेन है, इतना सोचता है, इतनी जल्दी सोचता है, अभी 1 सेकंड में आप कहाँ पहुंच जाओगे, जिस जहां भी आपने पहुंचना है? तो एआईए का मुकाबला, एआई से का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुकाबला नहीं होगा इस ब्रेन का। मैं एक और बात करता हूँ, आपको ये बातें बड़ी, एक है आपके पास इंफॉर्मेशन, बच्चे जो आप बात कर रहे हो ना वहां तक पहुंचने के लिए, एक फर्स्ट आपको क्या होती है, जो आप सीख रहे हो इंफॉर्मेशन ले रहे हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन है, उसके बाद क्या हो रहा है, नॉलेज। तब उसको थोड़ा सा आप देख रहे हो कि नॉलेज आ गई आप, फिर क्या है, फिर आपको अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना, इंटेलेक्ट है, और इंटेलेक्ट से आगे क्या है, वो एक जैसे बाबा नानक हो, बगैर पढ़े फकीर, जो भी फकीर हुए हैं हमारे इंडिया में, सूफी से, जैसे मोहम्मद साहब थे, पैगंबर हुए हैं, जो भी पैगंबर हुए हैं, उनको रिले होता था, उनको सीधा उन्होंने अपना जो उनकी कहते हैं, हमारा जो ब्रेन, आइंस्टाइन का ब्रेन संभाल के रखा। आपको याद होगा आइंस्टाइन का अभी भी ब्रेन रखा है, वो कहते हैं चोरी हो गया, क्या हुआ है, तो संभाल के रखा। क्यों? देख रहे यार ये कैसे सोचता है, जैसे आपके मोबाइल में अब्दुल कलाम तो आपने ये आस्ता आस्ता डेवलप होता है, ये प्रैक्टिस से होता है, ये कोई नहीं है कि फॉरन कोई, हाँ ये मैं बात करूँ, मैं एक यहाँ पे लद्दाखी एक फोन तो वहां पे वो मैंने कहा जो आप लोग आप एक लेक्चर कोई बनाता है, गाना बनाता है, देखिए एक्टिंग करने वाले जो एक्टर्स हैं दूसरे हैं, ये लोग हैं जहाँ जो रिलीजियस, जहाँ दूसरे लोग हैं जो एक अच्छी स्पीच देते हैं, अच्छी बात करते हैं, वो और कोई बनानी है, वो उसमें इतनी गहरी होती है। एक दो देखो जो शायरी है कि आम आदमी को मेरी जैसे बंदे को समझ नहीं आती, तो जब ये वाली नॉलेज आपके पास होती है, तो जो 2-3% की कैटेगरी में तब आपके तो कंपटीशन ये नहीं करते है बात। मैं एक और बात करता हूँ,
आपको किसी भी चीज के लिए जाना है, फर्स्ट हम जैसे एक आगे मैं बात करूंगा, आपको क्या होता है पहले स्टार्ट में क्या है, स्टार्ट में आपका माइंड बनना चाहिए। मैंने आज जो लोग आप आए हैं यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर एजुकेशन के लिए, पहले आपका दिमाग में आएगा मैंने अगर मैं ला कर भी लिया, अगर यार मैंने पढ़ाई कर भी ली ग्रेजुएशन, बट आई वुड डू इन फ्यूचर, मुझे कोई जॉब मिलेगी यार, ये वाला काम होगा, मैं चलो टाइप करूंगा। और अच्छा है, हजारों में जो हमारे कंप्यूटर जजमेंट टाइप करते हैं दूसरे तीसरे हैं, जो लॉ इंटर्न है, जो जुडिशरी में जब दूसरे काम करते हैं, वो सारा उनको जब तक ये नॉलेज नहीं वो मतलब वो कहते हैं कि अपनी रोजी रोटी वो कमा लेता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे IAS बनेंगे, सारे इंजीनियरिंग बनेंगे, जहां कहीं भी हो उसके लिए कंपटीशन है, उसके लिए एक्सेल करो। और आपको जैसे अभी कहाँ पे जाना है, पुराने ब्रांड की हमने चीज दी, तो इसमें पहले आपका क्या बना, पहले आपकी एक माइंड बना, फिर आपने एक उसका बनाया कि एक जैसे होप अप्रोच क्रिएट्स अप्रोच, फिर अप्रोच बनी, फिर डेस्टिनी है आगे है। तो पहले एक आइडिया है, फिर आपने देखा यार आइडिया कैसे है, और जो एक और आपने बात की, मैं नोट करता हूँ पूरी बात है कि फॉर एग्जाम्पल हम वहाँ नहीं हुए, तो मैं बच्चों को हम पूछते हैं, अभी भी हम कोचिंग इनको मॉक एक्सरसाइज बुलाते हैं, हम पूछते हैं बच्चों को कि बताओ आपका प्लान 2 क्या है, आपका प्लान 3 क्या है। हो सकता है आप में ही जे भी एजुकेशन एक एक्स्ट्रा काम आएगी, जे वाली चीज है ना, जे एक समझो इनहेरेंट आपके साथ चलेगी, जो ये वाली नॉलेज है। अगर आप दूसरे हो तो आप कहीं भी चले जाओगे, दूसरी जगह पे कहीं भी चले जाओगे, जो आप एक IAS ऑफिसर बन जाओगे, पुलिस ऑफिसर बन जाओगे, ये बड़ा एक्स्ट्रा काम आएगा। तो उसमें क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप वहां सक्सेसफुल नहीं रहते तो आपके पास ट्रैक 2 और एक मैं बताऊं, अपना जो एम्बिशन है, सपने ठीक हैं लेकिन सपने अपनी स्ट्रेंथ, ये भी हम पर्सनल पूछते थे बच्चों को, ये मुझे बताओ कि भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप KS के लिए काबिल हो, KPS के लिए हो, जब पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या स्ट्रेंथ है आपकी और क्या वीकनेस है। स्ट्रेंथ और वीकनेस भी देखनी है, मतलब ये जो आपके ड्रीम्स हैं इट शुड नॉट बी, वो शुड नॉट बी इन हियर। तो उसकी अपनी पहले अपनी स्ट्रेंथ देखो कि आपको एक बड़े पहलवान से लड़ना है या किसी से भी टकराव करना है, तो अपनी भी स्ट्रेंथ देखनी है ना। आप पहले सोचो कि और कई समझदार लोग क्या होते हैं, आस्ता 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 चढ़ते जाते हैं, आपकी एक डेस्टिनी भी और मेहनत आपकी है और रहमत खुदा ये भी है, किस्मत भी प्ले करती है, लेकिन बगैर मेहनत के नहीं, मेहनत भी वही कई बार वही कराता है और आपको रास्ता दिखाता है। ऐसी बात नहीं है, ये वो भी नेचुरल जो हमारा फिनोमेना है, तो सिस्टम है, क्योंकि ये हमारा कहते हैं ना जो एक हमारे सोल है, जो कहते हैं ना ब्रह्मांड है जो पूरा है, उसके साथ हम ऊपर देखते हैं, ऊपर वाला करेगा, ऊपर में कुछ ना कुछ हम जुड़े हुए हैं। लेकिन ये तब है अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी, आप जैसा सोचोगे इन टाइम पे, टेलीपैथी कुछ होता है कि वैसा ही हो जाता है, और मतलब जैसे आप माइंड डेवलप करो। तो लेकिन ये मैं आइडिया दूंगा, बाकी कुछ भी है, नेगेटिव थिंकिंग बना अपना ये मेंटल सोचना है ना, इसको आप पॉजिटिव सोचोगे, आपको खुद ब खुद मार दूंगा। और आपने ये समझना है मैंने इनके साथ दोस्ती बना, जहां आप आए हो तो कुछ ऐसे लोग फ्रेंड्स बनेंगे आपके। मैंने देखा है कई ऐसे सेंटर जो आपकी एज है, मैं सबसे पहले करूंगा अगर आप बच गए, जो आज नशा खोरी है, ड्रग्स है, दूसरा है, जे आपके माँ बाप और आप से सबसे खतरनाक जो काम होगा ना, मैं देख के बड़ा खुशी होती है कि आप लोग पूरे तैयारी में हो आगे बढ़ने के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए, डेस्टिनी की तरफ। तभी आपने क्वेश्चन पूछा, तो हमें खुशी होती है कि बच्चे जे जो मेन स्ट्रीम वाले आ रहे इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने आगे पूछने, तो ये बहुत कम है। तो इसकी और कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी ये बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि
हाफ बेक्ड रह जाता है केक। आप एक आइडिया यार ये भी कर लेते हैं, यार ये भी कर लेते हैं, तो होता कुछ नहीं। जब देखिए बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल में कम नहीं कहूँगा, क्योंकि एक बिजनेस किया उसमें फिर दूसरा किया, तीसरा किया, एक जाल छोड़ी दूसरी छोड़ी, जैसे है। तो ये भी बात है। और पूछो कुछ और एनीवन कोई और कोई और? ऐसे नहीं होता, जैसे कहते हैं कि इन्होंने बोला कि आप सारे इंट्रोडक्शन दो, कि बच्चों को इनकरेज किया कि वो आपके साथ इंटरेक्ट करें, उनको थोड़ा अंदर से ऐसे खोल के बोलने की थोड़ी मोटिवेशन की। नहीं, एक आपको पता क्या है, मैं बताता हूँ दो चीजें। एक बीच में इससे क्या हुआ, मैं फिर थोड़ा एक्सपेंड और फिर अपना भी आप बात कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब आपको मैं पब्लिक सर्विस कमीशन में था, तो बच्चे उनको नॉलेज काफी थी। आपको फायदा है, क्योंकि आपको अगर आप नहीं बोलोगे तब भी आप काम कर लोगे। जो टेक्निकल नॉलेज वाला है ना, अगर ज्यादा नहीं भी बोलेगा, लेकिन कई जगह पे आपको डिमांड्स बिल्कुल ऐसे थोड़ा है, ये बराबर में है। एडवोकेट है, उसको कंप्यूटर बना लिया, उसने अपना केस ड्राफ्ट कर लिया, सारा बना लिया, लेकिन बोल रहे हैं। तो इसमें मैं उधर से हम बच्चों को अभी भी जी जाते हैं IAS की कोचिंग वगैरह, या दूसरी कोचिंग एजुकेशन एस्पायरेंट्स हैं, जहाँ सिविल सर्विस के एस्पायरेंट्स, जहाँ आप लोग भी हो, मैं आपको जब आप बात करते हो, एक ग्रुप है, कितने लोग बैठे हैं आप, यही आपको पैनल बनेगा, कोई भी इंटरव्यू हो, तो आपने आंसर क्या करना है। मैंने क्वेश्चन पूछा, मैं अभी भी बच्चों को स्टूडेंट्स को जब मैं जाता हूँ वहां पे, कांटेक्ट आई कांटेक्ट मेरे से रखना है, और साइमल्टेनियसली रिस्पेक्ट जो भी यहाँ पे कैसे सर ने कहा, क्योंकि इनका क्वेश्चन था कि आप लोग इंट्रोड्यूस करो, लेकिन देखने वाले कौन लोग हैं, सारे हैं, आप हम भी हैं। तो आई कांटेक्ट जो बोलने वाला है उसका तो एक कॉन्फिडेंस होगा, वो कहते हैं ना मिरर के सामने, शीशे के सामने बोला, तो इतना भी बहुत है जो आपने इंट्रोड्यूस, इतनी भी बोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं बिल्कुल मैंने देखा किसी कोई झिझक नहीं हुई, कोई रुकावट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, अच्छा है। चलो आपके लिए एक लाइसेंस। और जो मैंने बातें की हैं इसमें बारे में कुछ और एक्सपेंड करना तो है। ठीक है, इसको फोन दिया आपने, चलो सर का फोन। थैंक यू। आप जहाँ बैठे हैं ना, चेहरे ऐसे ही बैठो। नहीं, मैं पता